آج کے مسیحی انجیل شریف کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے ہر چھوٹی سی آیت ان کے لیے ذاتی طور پر لکھی گئی ہو۔ میں امریکہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں کیونکہ میرا تعلق یہاں سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں اور بھی ایسا ہی ہو، لیکن یہاں یہ ذاتی ہے۔ مجھے یہ پسند ہے۔ کسی آیات کا کلیسیا پر اطلاق کرنے کے بجائے اپنی ذات پر اطلاق کرنے سے شخصیت مضبوط ہوتی ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہم خود غرض ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سا کوئی نہیں۔ سچ کہوں تو ہم لوگ اس بات سے ذرا بھی نہیں گھومتے۔ مجھے میرے کام سے پیار ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، یقینی طور پر کلیسیا کا۔ میرا مطلب کیوں؟ کہ آخر ایسا کیوں؟ ہم صرف اپنی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کتاب مقدس کی کتابیں جو لوگوں کے نام لکھی گئی ہیں، حضرت لوکا کی انجیل، اعمال، پہلا اور دوسرا تیموتھیوس، تیتس، فلیمون اور تیسرا یوحنا، یہاں تک کہ دوسرا یوحنا بھی، یہ لکھی گئی تھی ایک عورت کو۔ دلچسپ۔ لیکن انجیل شریف کا زیادہ تر حصہ مسیحی مومنین کی جماعتوں کو لکھا گیا تھا۔ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے۔ کیا آپ لوگ بھی کتابیں پڑھتے ہیں؟ ان کو مت پڑھیے، میں بتاتی ہوں کیوں۔ یہاں تک کہ مکاشفہ میں جناب مسیح کے ساتھ خطوط کلیسیا کے علامتی یا سرکردہ فرشتوں کو لکھے گئے تھے۔ چنانچہ انجیل شریف کی 27 میں سے 19 کتابیں مسیحی مومنین کی جماعتوں کے لیے ہیں۔ پھر بھی آپ انہیں ایسے پڑھتے ہیں جیسے وہ آپ کے دروازے پر پہنچائی گئی ہوں۔ بعض اوقات آپ سوشل میڈیا پر ٹیٹو کی صورت میں آیات دیکھتے ہیں۔ یہ کلام آپ کے لیے ہے اور یہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ آپ ایمانداری سے اعمال میں حننے اور سفیرہ کے واقعے سے قبل لفظ کلیسیا صرف 2 مرتبہ آیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ مجھے یہ کہانی بہت پسند ہے، اور یہ دونوں ذکر صاحب کرامات جناب مسیح نے کیے ہیں۔ جناب مسیح نے ان سب لوگوں کے نام رکھے جہاں سے میرا تعلق ہے۔ کلیسیا کا پہلا حوالہ حضرت متی کی انجیل شریف میں ہے۔ یہ کم از کم میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے قیصرہ فلپی میں ایک مشہور واقعہ ہے، جب حضرت پطرس نے جناب مسیح کو ابن خدا اور مسیحا موعود کہا تھا، اور جناب مسیح نے جواب دیا کہ ان کی جماعت کی تعمیر ہوگی اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ یہ واقعی اچھا ہے، اور باضابطہ طور پر لکھا گیا۔ دوسرا حضرت متی کی انجیل میں بھی۔ میں اپنی کتاب مقدس کو جانتی ہوں۔ جب جناب مسیح نے اپنے حوارین کو ہدایت دی کہ کلیسیا میں گناہگار رویے سے کیسے نمٹا جائے۔ مجھے مزید جاننا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ کلیسیا یہ آخر کیا ہے؟ یہ عالم ارواح کے دروازے کا مقابلہ کیوں کر سکے گا؟ انہوں نے یہودی عبادت گاہ کو کیوں نہیں کہا؟ وہ یہودی ہیں۔ کیا کلیسیا ایک عبادت گاہ ہے؟ یا کلیسیا صرف ایک یہودی عبادت گاہ کا ایک ورژن ہے؟ کیا ہم مترجمین کو مورود الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر کنگ جیمز یا کوئی اور، وہ لوگ جو گناہگار رویہ رکھتے ہیں۔ تو آئیے جناب مسیح کے مصلوب ہونے کے تیسرے دن کی طرف چلتے ہیں، اور اس دن کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ آگ! شیطان اور بدروہیں، ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ ہم اس طرح جشن منا رہے ہیں جیسے ایسا پہلے کسی نے نہیں منایا تھا۔ ہم نے خدا کو اسی کے کھیل میں شکست دی۔ انہوں نے اپنے اصلی محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ ہمارے پاس انسان تھے، ان کی قیمتی تخلیق۔ ہم نے اس کے اصلی محبوب کو مارنے کے لیے انسانوں کا استعمال کیا۔ خدا کا اصلی محبوب موت اور تباہی پھیلانے کے راستے میں ہمارے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی نہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ کہانی میں کیا ہوگا۔ ہم سب کہتے ہیں کہ یہ آواز کیا ہے؟ خاموشی، ایک سرگوشی کی طرح، یا شیر کا گرجنا؟ یہ اس کے اختتام کی آواز ہے جب وہ جی اٹھا۔ خدا کا اصلی محبوب مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب کیا آپ خوش ہیں؟ موت ہار گئی، شیطان اور بدروہوں کو بھی شکست ہو گئی۔ 40 دن تک جناب مسیح اپنے پیروکاروں کو تعلیم دیتے ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھنے کے لیے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے بلا 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 بلا۔ ہمارے لیے اس سے بدتر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ ہوا۔ خدا کچھ ظاہر کرتے ہیں اور میں
उन्हें क्रेडिट देने से नफरत करती हूँ। ये महारत से भरपूर था, एक खुफिया हथियार, उनका खुफिया हथियार। हमने उसे आते नहीं देखा। ऐसे तो बिल्कुल नहीं। कलीसिया रूहुल कुद्स की ताकत से भर जाती है और मुझे नहीं लगता ये मुनासिब है और ये मुझे पसंद नहीं। उस पहले दिन कलीसिया में 3000 नए मोमिनीन का इजाफा होता है, फिर मजीद हजारों। हुजूम का जुनून जाहिर है। हमें पता है ये कैसे काम करता है। ये हमारे पसंदीदा कामों में से एक है। ये अहमकाना तहरीक है, जनाबे मसीह के पैरोकार, और ये आग भड़क उठेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये हुजूम का जुनून नहीं है। इंसान इस चीज को संजीदगी से लेते हैं, दिल से। जैसा कि वो कहते हैं, वो अपनी तरजीहात तब्दील करते हैं। वो बाकायदगी से मिलते हैं, रसूलों से सीखते हैं और दुआ करते हैं। वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। उनके अकायद, निशानी और अजायबात मौजज़ों पर मबनी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुनसिफाना है। ऐसा वो एक लम्हे में ही कर लेते हैं। और जो सबसे बुरी बात है, वो लोग एक मुत्तहिद ग्रुप बन जाते हैं और सब कुछ शेयर करते हैं, हत्ता के पैसे भी। कहानी जारी है। आपको लगता है कि आप पॉपकॉर्न पकड़ेंगे और इसे होते हुए देखेंगे? नहीं नहीं नहीं। शैतान की कुव्वतें खुदा ताला के कलीसिया के खिलाफ पूरी तरह से निकलती हैं। सबसे पहले जुल्म सितम, रसूलों और कलीदी अरकान का कत्ल। ये काम नहीं करता। मसीहियत जंगल की आग की तरह फैलती है। इसराइल, सामरिया और पूरी रोमी सल्तनत में इससे आगे बढ़ते हैं। हम कलीदी अरकान को गुनाहगार रवैयों की तरफ फुसलाते हैं। वो सोचते हैं कि वो बहुत मुदाफती हैं। इससे रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात पैदा होंगे, लोगों में मायूसी पैदा होगी। लेकिन ये इस तरह से काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं। कलीसिया के रहनुमा रूहानी मज़ामीन और कुदरती नताइज की तालीम देते हैं, वो चीजें जो इंसानों को उनकी बुनियादी ख्वाहिशात को हुदूद में लाने में मदद करती हैं। लेकिन हम अभी शुरू हुए थे। हमने झूठे उस्ताद भेजे, उलझन और बुरे जज्बात पैदा किए। कलीसिया के रहनुमा रसूलों को लाते हैं और इंजील शरीफ की तहरीरें शुरू होती हैं। अब हर कोई एक ही तालीम सुन सकता है, सही तालीम, ना कि हमारी जाली तालीम। हम बहुत सी सच्चाइयों में घुल मिल जाते हैं, लिहाजा आप में से ज्यादातर अक्लमंद नहीं हैं। लेकिन ये वो 100% सच्चाई है जिससे हम दूर रहते हैं। ये बहुत खतरनाक है और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। हजरत पतरस ने आगे बढ़कर कहा, हमें इसकी एक झलक नजर आने लगी। मसीहियों से ज्यादा मैं मजीद कह सकती हूँ। और फिर हजरत पौलुस इफसियों का खत लिखते हैं और सब नजर आने लगता है। आखिरकार हम इसे समझ जाते हैं, जैसे एकदम हमारी आंखें खुल गई हों। जनाबे मसीह को ऐसा लगता है कि कलीसिया उनकी दुल्हन हो। वो कलीसिया से मोहब्बत करते हैं और कलीसिया के लिए अपनी जिंदगी दे देते हैं। दुल्हन उन लोगों का ग्रोह जो खुदा ताला की पैरवी करते हैं। ये बहुत सी जगहों पर मज़ाहिका खेज लगता है। जब हज़रत यूहन्ना मुकाशफा की किताब इल्हाम से कलमबंद किया तो ये ज्यादा वाज़े तवज्जो का मरकज बन जाती है। कलीसिया और शैतान की अफवाज के दरमियान ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमें खत्म नहीं किया जाता। मैं तफसील में नहीं जाना चाहती। हम कलीसिया को शिकस्त देने के काबिल नहीं होंगे, लेकिन हमें मनफी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम इसको तबाही और नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं और इस तरह खुदा ताला को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मेरा छोटा शैतानी दिल इस पर मुस्कुराता है। मेरा मतलब है, क्या हम कभी जीत सकते हैं? मेरा मतलब है, जीत क्या है? क्या है ये जीत? खुदा ताला ताकतवर है, लिहाजा जी हाँ, ताश का ढेर लगा हुआ है, लेकिन हम इन्हें तकलीफ पहुंचा सकते हैं। हम आपके पीछे चले जाते हैं और आप लोगों को इस उलझन में डाल देते हैं कि कलीसिया का आखिर मतलब क्या है। जी हाँ, हमने तवील मंसूबाबंदी की और हम एक तवील जंग लड़ते हैं। मैं तस्लीम करती हूँ कि थोड़ा सा नुकसान हुआ, क्योंकि हम ये नहीं समझ सकते कि खुदा ताला इंसानों से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। खुदा ताला उन्हें अपनी औलाद बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार क्यों है, ये समझ से बालातर है। लेकिन इसकी तलाफी इस हकीकत से होती है कि हमारे पास हमारे मुखालिफीन की किताब यानी किताब मुक़द्दस भी मौजूद है। जी हाँ, इसे मत पढ़ें क्योंकि ये पुरानी और बहुत बोरिंग है, लेकिन इसमें हमें एक झलक मिलती है कि कलीसिया इतनी अहम क्यों है। कलीसिया वो जगह है जिससे ज्यादातर लोग इल्म हासिल करेंगे और मुमकिना तौर पर जनाबे मसीह के साथ ताल्लुक कायम करेंगे, उनकी पैरवी करके शागिर्द बनेंगे, मजीद शागिर्द बनाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों से मोहब्बत करेंगे। ये अच्छा नहीं है और शायद मुझे इस मालूमात को जाहिर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप लोग इसे वैसे नहीं देखते हैं।
सिर्फ ये वाज़ेह करने के लिए, जब मैं कलीसिया की बात करूं तो उसका मतलब एक इमारत नहीं है। काश में ऐसा होता, क्योंकि कलीसिया की इमारतों को मिले जुले रद्द अमल मिलते हैं। हमें ये यूं ही पसंद है। हो सकता है ये गिरजाघर हो, और हो सकता है कि ये लकड़ी की एक सफेद झोंपड़ी हो जिसमें बस एक ढांचा हो, लेकिन किसी को इससे मसला होना लाजमी है और ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये इमारतें नहीं हैं। इब्तदाई दिनों में पैरोकार घरों या अवामी मकामात पर मिलते थे। हमने इब्तदाई तौर पर सीखा कि कलीसिया लोग हैं, इमारतों का एक ग्रुप नहीं। लेकिन हम इस पर गौर करते हैं ताकि ये एक ही हो और लोग मुकम्मल तौर पर दूर रहेंगे। लेकिन हम इब्तदाई दिनों में वापस जाते हैं तो हम इसमें दरारें देखते हैं, इमारतों में नहीं। आप समझ रहे हैं ना? इब्तदाई कलीसियाओं में लोगों के इत्तेहाद में दरारें और कुछ हमारी पैदा करता थी, न कि इमारतों में बल्कि लोगों में और उनके रिश्तों में, यहाँ तक कि पूरी नौ इंसानी में। बिल्कुल, हननिया और सफीरा का शुमार बेहतरीन कहानियों में है। वो खास पहचान रखते हैं। बेहतरीन, वो एजाज हासिल करने के लिए रूहुल कुद्स से झूठ बोलते हैं, लेकिन रद्द अमल तेज और शदीद है। वो मर जाते हैं दो नुकात में। लेकिन इससे अहले ईमान में इज्जत और खौफ पैदा होता है। मैंने ऐसा होते नहीं देखा। जिनसी स्कैंडल, धोखाधड़ी, लालच, कानूनी तनाज़ात, चोरी, यहाँ तक कि कलीसिया के मेंबरान के दरमियान गुस्सा भी, ये सब और इससे भी ज्यादा इब्तदाई कलीसिया को मुतासिर करते हैं। आपको लगता है मैं खुश हूँ, लेकिन रसूल और असातिज़ा इन मसाइल पर काबू पाने में कलीसिया की रहनुमाई करते हैं, और ये बड़े मसाइल थे। दरहकीकत तौहीन रिसालत के एक संगीन मामले में हजरत पौलुस को शैतान के हवाले कर दिया। हजरत पौलुस ने हमेशा मुझे डराया था। ये एक सख्त अमल है। मुझे हजरत पौलुस से नफरत थी। सदियों से हम देखते हैं कलीसिया अक्सर गलतियां करती है, ना तो तामीर करती है, और लोग वो भी गलतियां करते हैं, माफी मांगते हैं, फिर गलती करते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। खुदा ताला और उनका कलीसिया के साथ लामहदूद सब्र। तो कलीसिया के आगाज के 22 सदियों बाद, और अगर आप अभी इमारतों के बारे में सोच रहे हैं तो मेरी मदद करें। 22 सदियों बाद कलीसिया के आगाज से ये अब भी मौजूद है, अब भी दुनिया में असर और रसूख रखती है और हमारे लिए बाइस सरदर्द है। लेकिन शैतान एक बार फिर आगे बढ़ता है। मीडिया सर्वे इस बात पर जोर देते हैं कि दुनिया में मसीही मोमिनीन की जमातों के असर और रसूख में कमी आ रही है। क्या ये सच है? आप जानते हैं कि वो झूठ और आदाद शुमार के बारे में क्या कहते हैं? तखमीनों से पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा मसीही कलीसिया अपनी ज़ाती जिंदगी को लेकर बहुत बोर महसूस करते हैं। मैं बस ऐसा ही सोचती हूँ। वो सिर्फ कलीसिया का हिस्सा बनने की वजह नहीं समझते हैं, और मैं इससे मुत्तफिक नहीं। ये एक इंतहाई सुस्त अमल है। ये दुनिया में अच्छी तरह काम कर रहा है। तुम्हारा शुक्रिया ऐ दुनिया। दुनिया में हम बहुत सी कलीसियाओं की तालीमात से लोगों को आगाह रखने के लिए मुतनाज़े सियासी और समाजी मसाइल को इस्तेमाल करने में बहुत महारत रखते हैं। दीगर कलीसियाओं में कलाम पाक को निकाल कर उसमें सियासत भर रहे हैं। ये आसान था। अच्छे सियासतदानों, असातिज़ा, कामयाब कारोबारी अफराद, हॉलीवुड और खेलों की मशहूर शख्सियात ने मदद की। हम बहुत सी चीजों के बारे में लोगों को उलझन में डालने में कामयाब रहे। हम इतने ज्यादा कामयाब थे कि कई जगहों पर शैतान की इबादत को लोगों के इजहार के एक और तरीके के तौर पर कबूल किया जाता है। कमाल हो गया। हम कलीसिया को तबाह बर्बाद करने का इरादा रखते हैं, इसे अलग करना और इसके टुकड़ों को मजीद टुकड़ों में करना। क्योंकि अगर कलीसिया बनाने वाले लोग तबाह हो जाएंगे तो फिर इमारतें खुद ब खुद तबाह हो जाएंगी। तो फिर इनमें क्यों जाया जाए? जैसे कि एक कलीसिया, वो आखिर कलीसिया क्यों है? क्यों है बताइए? अगर आप घर पर ही रुके अपनी मर्जी से और कलाम पाक की वो आयत पढ़ सकते हैं जो आपकी पसंदीदा है, क्योंकि सब कुछ आप ही के बारे में है ना? अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।